तो एक आदमी के लिए पाप जैसा है। कोई लड़की डेट नहीं करेगी, कोई शादी कर। बेरोजगार होना तो एक आदमी के लिए A पाप man without a job is a sinner. जैसा है। कोई लड़की डेट No नहीं one would करेगी, date कोई him. शादी का रिश्ता No नहीं one would want आएगा। to जॉब marry him. इंटरव्यू में Damn, ain't that the truth? I'm just gonna say this, like, compare this to like an American. In America, if you're a dude who doesn't have a job, who kind of always has like this gig kind of job, maybe you just drive and deliver food, in this society, you are deemed a loser. में आपसे कहा जाता है कि अरे आप तो लड़के हो, आप एक पोटेंशियल चाइल्ड अब्यूजर हो सकते हो, इसलिए आपको ये नौकरी ही नहीं मिलेगी, आपको कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। शादी के लिए सिर्फ एक एम्प्लॉयड आदमी काफी नहीं है, बल्कि एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो ज्यादा कमाता हो। शादी ही मत करो, औरतों के साथ रिलेशनशिप में Don't get married. Marriage has nothing to offer you. We are filled with filthy ass feminists, and our laws are genocentric. I mean, that last sentence is extreme, but not wrong. होना ही बकवास है। सिंगल ही खुश रहो, मैं तो बड़ा चिल गाय हूँ। चाइल्ड कस्टडी मिलना तो बहुत दूर की बात है, कई सारे मर्दों को अपने बच्चों से मिलने तक नहीं दिया जाता। This is actually insane that fathers have to fight so hard for equal opportunity to see their kids. It's actually kind of insane. कई सालों तक। नमस्कार दोस्तों, अतुल सुभाष का शॉकिंग केस जैसे ही पब्लिक के सामने आया, सोशल मीडिया पर काफी हल्ला मचा। शायद से पहली बार देश में मेंस इश्यूज का जो मुद्दा है वो मेन स्ट्रीम डिस्कशन में सामने आया। I am so glad that men's health and men's like mentality is finally getting talked about, because we have this thing where it's like we have to be these high performers at work. So we have to be like work focused and work obsessed, right? But if we're not really being a high producer or high performer, right, and we leave and come home, there's this like expectation for you to be a high performer. So if you're not a high performer, what's the best way to become a high performer? It's to get into the trenches and start working. And it's this vicious cycle that it's just like most dudes never get the feeling of the validation that they are enough from their peers, from themselves, from their loved ones. लोगों ने बात उठाई कि कैसे देश में खराब लीगल सिस्टम, खराब जुडिशियल सिस्टम और एक करप्ट सरकारी सिस्टम के चलते मर्दों को प्रताड़ित किया जाता है। अतुल सुभाष मर्द लोगों को जल्दी इंसाफ ही नहीं मिलता। We see this in America. This is a very American issue. So I'm glad that this isn't just an American issue or an Indian issue. This is a global issue where men and the laws are set up for them to lose. किसी चीज के लिए हर परेशानी की जड़ है आईपीसी की धारा 498A। लेकिन ये केस कोई इकलौता केस नहीं है। असलियत में ये मुद्दा कहीं ज्यादा और गहरा है और इस पर सीरियस मेन स्ट्रीम डिस्कशन बहुत कम है। ज्यादातर डिस्कोर्स इस मुद्दे पर पति पत्नी के संबंधों पर बेस्ड होता है। सेक्शन 498A की काफी बात होती है, डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर जो सेक्शन है। इस सेक्शन को डिवोर्स केसेस में कई बारी एक हथकंडे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। Okay, then what does it say? Whoever, being the husband of the relative of the husband of a woman, subjects such woman to cruelty shall be punished with an imprisonment of a term which they may extend to 3 years and shall also be liable for fine. The explanation for the purpose of the section: cruelty means any willful conduct which is such as a nature that is likely to drive the woman to commit suicide or cause grave injury or danger to life, limb, or health, whether that be mental or physical of the woman. Shouldn't this be applied to the man as well? जो सेक्शन है, इस सेक्शन को डिवोर्स केसेस में कई बारी एक हथकंडे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। हालत इतनी खराब है कि 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट तक ने 498A के मिसयूज को लेकर कंसर्न जाहिर किया था। कोर्ट ने कहा कि इस सेक्शन को लाया गया था ताकि औरत पर हो रहा अत्याचार प्रिवेंट किया जा सके जो हस्बैंड की तरफ से किया जाता है। लेकिन अब एक इंक्रीजिंग टेंडेंसी देखने को मिल रही है जहां पर वाइफ्स इसका इस्तेमाल कर रही हैं हस्बैंड्स और हस्बैंड के रिलेटिव्स के खिलाफ पर्सनल स्कोर सेटल करने में। इसे लेकर लोग पत्नी पीड़ित पुरुष संघ बनाते देखे गए, धरने करते देखे गए, जिसमें ये लोग पीपल की पूजा करके मांग कर रहे हैं कि 7 जन्मों का साथ निभाने वाली पत्नी की प्रार्थना किसी भी हाल में न सुनी जाए। और ये सब अतुल सुभाष के केस से पहले की बातें हैं। इसके अलावा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशंस की बात होती है कि कैसे बेचारा लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के टैंट्रम से परेशान है। लड़की अचानक चुप हो जाती है, बताती नहीं कि क्या बात है और आप गेस करते रहते हो। Yeah, we all know this within the relationship where the women have the power. They just start fighting and yelling, and all they have a thought of you cheating. It's not reality, it's just a thought. But they're mad at you all day because that thought entered their head. या फिर बॉयफ्रेंड्स पर मोमेंट्स बनाने का जो प्रेशर होता है, इसकी कॉमेडियंस अक्सर बात करते हैं। जैसे हम एक बार साथ में बैठे हुए थे एंड शी इज लाइक, ओए कोई मोमेंट बना। मैंने कहा कि अभी तो गाड़ी चला रहा हूँ, इस टाइम कहाँ से मोमेंट बनाऊँ? क्या यही तेरी प्रॉब्लम है कि तू गाड़ी चलाते टाइम कुछ बोल ही नहीं रहा?
अब क्योंकि तू कुछ बोल नहीं रहा, ये ड्राइव मुझे बाद में याद ही नहीं रहेगी, तो मैंने खंबे में गाड़ी ठोक दी। मैन वुमन रिलेशंस के अलावा कुछ एक वीडियो में ये डिलेमा भी एक्सप्रेस किया जाता है कि कैसे आदमी सॉफ्ट हो तो कोई धिक्कारता है कि ये मर्द नहीं है, और अगर कठोर हो तो उसे पत्थर दिल कहा जाता है। अनिल कपूर का एक ये वीडियो टोटल धमाल फिल्म से काफी वायरल हुआ था इंस्टाग्राम पर। 2 मिलियन से ज्यादा लाइक्स हैं इस वीडियो के। ये मर्द होते ही ऐसे। अपने मम्मी के सामने वाइफ से प्यार से बात करो तो जोरू का गुलाम, वाइफ के सामने मम्मी से प्यार से बात करो तो माँ के पल्लू से बंधा हुआ। True. अपने ही बच्चों को मारो तो निर्दयी, और कुछ ना कहो तो लापरवाह, पूरा दिन घर के बाहर रहो तो आवारा, घर के अंदर बैठो तो नाकारा। Actually, Oh my God, is that not the truth? Is that not the truth, y'all? If you're respectful to your girl out in public, you're fucking whipped. If you like your mom, you're respectful to your mom, you love your mom, you call your mom like a few days a week, you're a mama's boy, little bitch. Little bitch. If you have kids and they're causing hell, they're causing chaos in public, and you spank them on the butt, say, "Yo, kid, chill the hell out. You're a monster." If you're on an airplane and the baby's crying and you do nothing about it, apparently you don't give a fuck. If you're home all day streaming and creating content online, you're a fucking loser. If you're out in the field all day, you're a workaholic. Am I married? Basically. यहाँ जो But I'm blessed. I love Lauren. She loves me. And we support each other. I am very, very blessed. पैराडॉक्स है वो इसलिए है क्योंकि समाज में पेट्रियार्कल सोच और प्रोग्रेसिव सोच दोनों साथ में कोएग्जिस्ट करती हैं। अगर आदमी अपनी वाइफ को नौकरी करने से मना कर देता है तो प्रोग्रेसिव सोच वाले इंसान इसे गलत कहते हैं कि वाइफ को क्यों रोका। लेकिन अगर वाइफ फैमिली इनकम में कंट्रीब्यूट करे और पति से ज्यादा कमाने लगे, Scotty, I love you too. तो पेट्रियार्कल सोच वाले लोग टॉन्ट करते हुए कहते हैं कि ये कैसा मर्द है। ऐसे में आप पेट्रियार्कल सोच के लोग और प्रोग्रेसिव साइड के लोग दोनों साइड्स को तो खुश कर नहीं सकते, इसलिए बेहतर ऑप्शन शायद यही है कि अपनी सोच को प्रोग्रेसिव रखें। लेकिन पॉइंट मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि मेंस इश्यूज पर जो डिस्कशन हुआ है सोशल मीडिया पर, ज्यादातर लोग जो इसकी बात कर रहे हैं वो एक सुपरफिशियल लेवल पर ही कर रहे हैं। अक्सर इस डिस्कशन का मिसोजिनी की जोन में चले जाना बड़ी आम बात है। बहुत से लोग आपको कहते हुए मिल जाएंगे कि अरे लड़कियां तो सारी ऐसी ही होती। This is my dad was going down this hole. My dad was going down the black pill. All the girls are the same. They just want money. They don't want anything to do with you. Like सारी औरतें ऐसी होती हैं। गर्लफ्रेंड होना तो मुसीबत है, अरे शादी तो बर्बादी है। you know me and Annabelle, you guys are just fucking crazy. Yeah, it seems like people who are just based, who are just good down to earth people that's easy to get along with. Apparently, we're the fucking crazy ones now because that's not normal. Shout out to you and Annabelle though for being some dope human beings. इन सब से दूर रहो। और दूसरी तरफ इसका उल्टा एक्सट्रीम भी देखने को मिलता है, जहां पर कुछ औरतें कहने लग जाती हैं कि सारे मर्द ऐसे ही होते हैं, all men are the same, सभी मर्दों से दूरी बनाकर रखनी। Why can't okay, this is gonna be controversial. I'm about to say something controversial. I have to. All men are assholes and most women are bitches. Okay? Repeat that one more time. Most men are assholes. Just like most women are bitches. चाहिए, और इन सब के बीच में जो मेंस इश्यूज पर सीरियस बातचीत होती है वो पीछे छूट जाती है। इसलिए आज के वीडियो में आइए दोस्तों करते हैं इस मुद्दे पर एक गहरी चर्चा। What about the other genders? There's like 10,000 genders. No, that's called a mental disorder. That's what that is. People with mental disorders, or they think they have multiple people living within them, that's also called schizophrenic. There are 2 genders. वीडियो शुरू करने से पहले 2 छोटी सी चीजें कहना चाहूंगा। पहला तो मेरी That is something that I think if I'm going to say that I'm radicalized in anything, it's that. आवाज के लिए माफी, हो सकता है आपको मेरी आवाज थोड़ी अजीब सी लग रही हो क्योंकि मेरा गला खराब है और थोड़ा सा बीमार हूं। और दूसरा, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस Happy New Year to you too, brother. बहुत से लोगों ने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाई होंगी। खुद को बेहतर बनाने के लिए आपने अपने लिए नए गोल्स सेट किए होंगे। क्या आप 2025 के साल में अचीव करना चाहते हैं? Damn right, Drew. And everybody over here in this community, we're taking every adventure that comes in front of us. We're taking every opportunity, and we are leaving nothing on the table. Ain't that right, y'all? और यहाँ पर मैं आपकी थोड़ी सी मदद करना चाहूंगा। ध्रुव राठी एकेडमी के सभी कोर्सेज पर न्यू ईयर की इस ओकेजन पर फ्लैट 50% ऑफ।
एग्जैक्टली आप अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हो, अपनी हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज करते हो, अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हो, ये आप सीखोगे मास्टर टाइम मैनेजमेंट कोर्स में। यहाँ आपको डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप प्लान मिलेगा अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। इसके अलावा अगर आप 2025 के साल में कंटेंट क्रिएशन को सीरियसली एज ए करियर कंसिडर करना चाहते हो, इसे अपनी पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम करियर बनाना चाहते हो, 7.5 घंटे का हाईली डिटेल्ड कोर्स यूट्यूबर बनने के ऊपर। और अगर आप बदलती दुनिया के लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर से अप टू डेट रहना चाहते हो, अपने आप को अपस्किल्ड रखना चाहते हो, तो Guys, I need you to do me a favor. So while he's doing this, I need you guys to do me a favor. If there's somebody you don't like a Drew Rothy, right, and he like grinds your gears, I want you to listen to more of what he has to say. Because if you think it's bad speech, the best way to stop bad speech is with good speech. Okay, so if you don't like Drew, listen to all the words that he has to say. Because even a broken clock can be right twice a day, right? Drew? You like Drew Rothy? I mean, it's not that I like or dislike him. I don't really care. I just want to hear more about this Atul Subhash case, and he tends to be from the left. I've been listening to a lot of right-wing politics or a lot of like geopolitics, so I want to hear what the left, quote unquote, has to say. महीने पहले अगर आपको याद हो दोस्तों, मैंने वीडियो बनाया था फेमिनिज्म के ऊपर, जिसमें मैंने बात करी थी कि फेमिनिज्म का मतलब होता है औरतों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। अपने आप में विचारधारा कोई मर्दों के खिलाफ नहीं है, इसलिए दुनिया भर में बराक ओबामा, क्रिस हेम्सवर्थ से लेकर फरहान अख्तर जैसे बहुत सारे मेल सेलिब्रिटीज भी खुद को फेमिनिस्ट कहते रहे हैं। मर्दों के फेमिनिस्ट होने का एक ऑब्वियस लॉजिकल कारण तो यही है कि वो भी अपनी माँ, बहन, दादी, भाभी, चाची, ताई, अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ के लिए एक बेहतर दुनिया चाहते हैं। I don't think that makes you a feminist, though. यही उन्हें न्यायपूर्ण लगता है। लेकिन दूसरा कारण जो हमने देखा वो इतना ऑब्वियस नहीं था कि मेल्स भी अक्सर पेट्रियार्की के विक्टिम रहे हैं। मैंने बात करी थी कमला भसीन की टेडेक्स टॉक पेट्रियार्की डीह्यूमनाइजेस मेन के बारे में, कि कैसे पेट्रियार्की की वजह से मर्दों का इमोशनल कैस्ट्रेशन हो गया है। और यूनिडायमेंशनल बना दिया पेट्रियार्की ने आपको। पैसा कमाने के अलावा बाय गॉड आपको कुछ नहीं आता, ना सिलाई, ना कढ़ाई, ना बुनाई, ना पापड़ बनाना, ना खाना बनाना, ना बच्चे पालना। What if you make your money from cooking? What if you make your money from creating clothes and you're a guy? What if you make your money from cutting hair? Right? Just because you make money doesn't mean that you're not skilled in other areas. चीज आती है पैसा कमाने की मशीन बन जाना। तो जिस तरीके से वुमेन्स इश्यूज की बात करना मेल्स के खिलाफ नहीं है, उसी तरीके से मेंस इश्यूज की बात करना औरतों के खिलाफ नहीं होता। कुछ मेंस इश्यूज तो ऐसे हैं जिन पर बात अभी तक शुरू भी नहीं हुई है, जैसे कि पैटर्निटी फ्रॉड। किसी आदमी की वाइफ उसे धोखा दे दे और वो अपने बच्चे का बायोलॉजिकल फादर ना हो, जबकि उसे लगता है कि वो है। इसको लेकर सोसाइटल एटीट्यूड्स में भी प्रॉब्लम है। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वाला जो समाज है वो इस आदमी का मजाक उड़ाता है ये कहते हुए कि ये तो अपनी पत्नी को काबू में भी नहीं रख पाया। इसको लेकर जो लीगल कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वो आदमी को फेवर नहीं करती। चाइल्ड कस्टडी का भी इससे रिलेटेड मामला है। अगर आदमी और औरत का डिवोर्स हो जाता है तो बच्चे की कस्टडी किसे मिलेगी? इस आर्टिकल को देखिए। ठाणे फैमिली कोर्ट में काटिया से पता चला कि उस साल जो 83 चाइल्ड कस्टडी के मामले थे, उनमें से केवल 2 केस में पिता को बच्चे की कस्टडी मिली। Oh my God. Oh my God. इस आरटीआई को फाइल किया था एक हस्बैंड ने, जिन्होंने अपने 5 साल के बेटे की शक्ल I have a friend in real life, like an IRL friend, somebody who I consider to be like one of my best friends, and he's fighting with this. And he's fantastic. He's a upstanding human being. And the mother, not so outstanding. And yet, he has to constantly fight to try to get some time with his kid. कल तक नहीं देखी थी पिछले 2 सालों से। चाइल्ड कस्टडी मिलना तो बहुत दूर की बात है, कई सारे मर्दों को अपने बच्चों से मिलने तक नहीं दिया जाता कई सालों तक। जब भी बच्चे से मिलना है एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है। बैंड्रा के बिजनेसमैन समीर बताते हैं कि एक्सेस ऑर्डर होने के बावजूद भी वो अपने बच्चों से मिल नहीं पाते। फिर है मुद्दा मेंस रेप का। जो औरतें रेप विक्टिम्स होती हैं, उनके खिलाफ समाज में बहुत सारा स्टिग्मा होता है। I know this is obviously bad for women, but there's a lot of dudes who go through this. A lot of young boys, especially in some areas that we just talked about, where they have little harem boys, and it's disgusting. की इज्जत चली गई। लोग कहते हैं उनकी This shouldn't happen to women, nor should it happen to men or young boys. पवित्रता चली गई। Absolutely लेकिन अगर किसी not. आदमी का एक दूसरे आदमी द्वारा रेप किया जाता है तो इसमें एक अलग तरह का स्टिग्मा देखने को मिलता है। कहा जाता है कि इसकी मर्दानगी चली गई। वॉर में मेंस रेप एक डार्क सीक्रेट जैसा है। बस कहीं कहीं से ऐसी कुछ बातें सुनने What's को up, Scotty? मिलती हैं।
जेल में आदमियों के साथ फेलो क्रिमिनल्स द्वारा रेप होता है। किसी को पता नहीं चला, You can go Hulk and chat. I ain't stopping you. खाली एक दो है। You're my tank main, remember? समाज में भी ऐसा होता है, लेकिन I ये become an heavily enraged underreported Hulk है। smash. अमेरिका से भारत तक मास मीडिया में मेंस रेप पर America. मजाक किए जाना आम बात है। स्टैंड अप कॉमेडी से लेकर कैजुअल कॉन्वर्सेशंस में मेल रेप को ट्रिवियलाइज किया जाता है। Okay, this is where I disagree with Drew. This is where I disagree with Drew because this is what happens in comedy, right? When you have a sensitive issue like the R-ing of young boys, sometimes the best way and the only way to shine a light on the situation is to make a joke on it. For example, when Tony Hinchcliffe brought up the Puerto Rico being a floating island of trash, people were like, "How racist? How could you say such a thing?" Me being a Puerto Rican, I'm like, well, he's not necessarily wrong because if you got trash in a trash can, it can only go to one spot. And if you're on a small island with the landfill's going to overflow. So I did a little bit of research and I'm like, holy shit, Puerto Rico is literally a floating dumpster. What the hell is happening? So when I see this with Drew, like trivializing some of the stuff because comedians are bringing it up, sometimes the only way to bring it up is through the form of comedy. ये एक जनरल लिंगो भी बन गई है। लोग अक्सर इसे गाली के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ऐसी हालातों में सोचकर देखिए, किसी मेल रेप सर्वाइवर के लिए रिकवरी मेजर्स तो क्या ही होंगे। इस पर कानून क्या कहता है? आपको याद ही होगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 को पार्शियली स्ट्राइक डाउन कर दिया था और इसके चलते होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था कुछ साल पहले। यानी कि दो कंसेंटिंग एडल्ट्स में सेम सेक्स रिलेशंस लीगली अलाउड हो। I believe in this. LGBT individuals are now legally allowed to engage in same-sex marriages. Cool. No one gives a fuck. No one should give a fuck, right? If you're a dude or a chick and you love the same gender and you guys genuinely care about each other and you want to be a benefit to society, cool. लेकिन इसी सेक्शन में फोर्स्ड सोडोमी को लेकर प्रोविजंस बरकरार रहे थे, जो मेंस रेप से डील करते थे। जैसे कि 14 जून को उत्तर प्रदेश पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप था कि इन्होंने एक 23 साल के आदमी का गैंग रेप किया है, जिसके बाद उस आदमी की आत्महत्या की वजह से मृत्यु हो गई। पुलिस ने इन 4 लोगों को इसी सेक्शन 377 के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। लेकिन अब नई भारतीय न्याय संहिता में I'm sorry. Can we? I just need to put up into the chat what was said right here. I can't do it. Nah, I'd win right here. Gojo has fucked all of us up. That panel of the nah, I'd win. Shit goes hard. मेन और ट्रांसजेंडर्स Spoiler alert. He doesn't win. के रेप के लिए कोई सेक्शन ही नहीं है। सही सुना आपने दोस्तों, जब से मोदी सरकार आईपीसी को हटाकर बीएनएस लेकर आई है, मेंस रेप एक When I was around 8, a guy lived on Rit in my house and used to show. Oh, गुनाह ही नहीं है हमारे true. I'm sorry, brother. देश में। क्या ही कहोगे यहाँ पर आप, मोदी है तो मुमकिन है। दूसरा मेजर इशू है मेल डिप्रेशन का। जैसे ही एक लड़का बड़ा होता है, उससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज छीन ली जाती है, सॉफ्टनेस। जैसे कि सॉफ्ट टॉयज, गुड़िया, परियों की कहानी। उसकी जिंदगी के कलर बॉक्स से कुछ कलर्स को परमानेंटली हटा दिया जाता है, जैसे कि पिंक और मैजेंटा के कलर्स। ज्योमेट्री बॉक्स हो, कपड़े हो, कमरों की दीवारों पर पेंट हो, बस पिंक कलर का नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये लड़कियों का कलर है। लड़कियां सॉफ्ट होती हैं और लड़कों को सॉफ्टनेस से दूर रखना चाहिए। कहा जाता है बॉयज मस्ट बी टफ। लड़कों की कंडीशनिंग ऐसी होती है कि उन्हें वायलेंट फिल्में पसंद हो, एक्शन फिल्में, गैंगस्टर फिल्में, बॉक्सिंग फिल्में, WWE देखना पसंद हो। जबकि लड़कियों के लिए कहा जाता है कि उन्हें लवी डवी रोमांटिक फिल्में पसंद होनी चाहिए, उन्हें इमोशनल टीवी सीरियल देखना पसंद होना चाहिए। आप सोचोगे क्या कोई इतनी बड़ी चीज Now, थोड़ी है? pink is a girl's color? Definitely a girl's color, but real men wear pink. ये सिर्फ पसंद नापसंद तक की ही तो बात है। इससे लड़कों को कोई नुकसान थोड़ी होता है। लेकिन ये सॉफ्टनेस छीनने का सिलसिला यहाँ girls like खत्म नहीं K-pop? होता। लड़कों से उनके आंसू भी छीन लिए जाते हैं, क्योंकि आंसू भी सॉफ्ट होते हैं। कहने को लड़के यारों के यार होते हैं, पक्के दोस्त होते हैं, लेकिन लड़के आपस में कोई दुख साझा करने से बचते हैं। रोने नहीं दिया जाता Yeah, the pink. आपको। आपकी माँ गुजर गई। The sad thing is, Scotty, I think you might. I mean, mine is my favorite color. I got a clear one. लड़कों With को रोने नहीं sparkles. दिया जाता। इमोशनल कैस्ट्रेशन। 2020 में यूके में स्टडी करी गई थी 260 पार्टिसिपेंट्स पर। इसमें पाया गया कि औरतों की फ्रेंडशिप्स में इंटीमेसी एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक थी, जबकि आदमियों की दोस्ती में सोशल एक्टिविटीज में एंगेज होना एक मेजर फीचर था। इसलिए ऐसा देखा गया
Guys, we could troll on each other, but let's not hate on each other. Everyone in this community, we're here for all the same reasons. We want to make people laugh, spread love, not joy. We could dog on each other, but क्या है कि फीमेल फ्रेंडशिप्स ज्यादा फ्रेजाइल होती हैं, ज्यादा आसानी से टूटती हैं। अगर दो लड़कियां काफी समय से मिल नहीं पाई हैं, बात नहीं कर पाई हैं, तो उन्हें महसूस होता है कि अब वो क्लोज नहीं रही। और अगर ये my favorite color is pink, but only if the girl is wearing it on her. Mine is too, but as soon as she takes it off of her, if you know what I'm saying. इंटीमेसी ना हो तो ये दोस्ती भी खत्म हो जाती है, जबकि आदमियों के केस में इसका उल्टा है। आदमी अपने दोस्तों के साथ कई महीनों तक, इवन कई सालों तक अगर बात भी ना करे, तब भी वो कहेंगे कि हाँ, ये मेरा अच्छा दोस्त है। ऐसी ही एक ये स्टडी करी गई थी 2022 में 153 पार्टिसिपेंट्स पर। यही बात सामने आई कि लड़कों के लिए दोस्ती का मतलब है मस्ती और लड़कियों के लिए इंटीमेसी और सपोर्ट। बहुत सारी ऐसी स्टडीज हैं जिनमें बार बार यही चीजें देखने को मिली है। एक 1988 की ये स्टडी है जिसमें बताया गया है कि औरतें दोस्ती में बात करना चाहती हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स शेयर करना चाहती हैं, जबकि आदमियों के लिए वही कॉमन एक्टिविटीज। साथ Yeah, but that's how men work through their stuff, is by playing and being active. में कोई खेल खेलना, Most dudes don't get their true emotions out sitting at a table sipping on chai and tea. या फिर इकट्ठे बैठकर शराब पीना, या फिर कोई मूवी देखने चले जाना साथ में। Yeah, we go out, we do some stuff, and then afterwards when we're walking back and we're going to the car, we've had a few drinks, you might hit up your buddy and be like, hey, everything going good? You said something earlier. I'm just checking in on you. सवाल यहाँ पर यह है कि मर्दों के साथ ऐसा क्यों है कि वो पर्सनल प्रॉब्लम शेयर नहीं करते। We all men love pink? Yeah, right? We all know the lesson. 2 in the pink and 1 in the stink. इसके पीछे कारण है वही इंटरनल डर कि उन्हें सॉफ्ट ना समझ लिया जाए। अगर दोस्त के सामने रो पड़ेंगे तो मजाक उड़ा दिया जाएगा कि ये देखो कैसे लड़कियों की तरह रोता है। मर्दानगी खतरे में आ जाएगी, इसलिए वो अंदर अंदर घुटते रहते हैं। यही घुटन डिप्रेशन में बदल जाती है और कई बारी मामला आत्महत्या तक पहुंच जाता है। This is going to be the last video. मेल सुसाइड रेट्स को लेकर जो डेटा है वो बड़ा क्लियर है। दुनिया भर में ये एक कॉमन ट्रेंड देखा गया है कि आत्महत्या से ज्यादातर मेल्स की डेथ होती है औरतों के कंपैरिजन। ये ऑलमोस्ट हर देश में वैलिड है। यूके में मेल्स का आत्महत्या का रेट है 15.5 डेथ्स पर 100,000। औरतों के लिए ये है 4.9 पर 100,000। ऑस्ट्रेलिया में औरतों के मुकाबले आदमियों का 3 गुना ज्यादा चांस है आत्महत्या से मरने का। अमेरिका में यही रेट 3.5 गुना है और इंडिया में भी यही कहानी है। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि 2021 में करीब 1,65,000 लोग मारे गए थे आत्महत्या से। इनमें से करीब 1,20,000 मेल्स थे और करीब 45,000 फीमेल्स। WHO के डेटा से हमें पता चलता है कि दुनिया भर में करीब 40% देश ऐसे हैं जहां आदमियों के लिए 15 पर 1 लाख से ज्यादा का सुसाइड रेट है, जबकि औरतों के लिए इतना सुसाइड रेट सिर्फ 1.5% देशों में है दुनिया के। ऐसा नहीं है कि औरतों में डिप्रेशन नहीं होता। इनफैक्ट ज्यादातर देशों में अगर आप डिप्रेशन का डेटा देखोगे तो औरतों में डिप्रेशन डायग्नोसिस के हायर रेट्स हैं। I think the depression is at a higher rate for women because they're more comfortable admitting to it. Most dudes live quiet lives of desperation and are probably depressed and can't articulate it. They don't even really know that depressed is the feeling that they're feeling, right? And they don't know how to get out of it, and they don't know how to talk about it. An estimated 3.8 population experience depression, including 5% of adults, 4% among men, 6% among women. 5.7 adults older than 60, approximately 280 million people in the world have depression. Depression is about 50% more common among women than it is among men. I disagree with that. I think it's 100% even across the board, and men just don't know how to talk about it. WHO ने स्टडीज को कोट करते हुए बताया कि डिप्रेशन औरतों में आदमियों के मुकाबले 50% ज्यादा कॉमन है, लेकिन आत्महत्या से ज्यादातर मेल्स मारे जाते हैं। मेंटल हेल्थ फाउंडेशन ने 2,500 ऐसे लोगों पर सर्वे किया जिन्हें Sadness is not depression? No, you're right. Sadness is not depression, but that's not what I'm saying, right? I think most men aren't sad, right? We can laugh. You could this is some real shit. You can go out with your friends, have a night out, laugh, drink, have fun, go home and still be depressed. Feel like you don't have a sense of belonging because you don't feel like you're enough. And that you're grateful for having friends because they're so great around you and you want to be great too, but you feel that you are not great. That's not sad, that's depression. And that hurts that there's so many dudes who live a life like that. Who are going out, having fun, laughing, drinking with the boys and go home and still feel alone. That's what we're talking about. मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स थी। इनमें से 28% मेल्स ने कहा कि उन्होंने मेडिकल हेल्प लेने की कोशिश नहीं करी है। यही नंबर फीमेल्स के लिए Hey, Nukunjay, I appreciate you, man. सबसे यही पता चलता है I appreciate you following and hanging out. कि आदमी दोस्तों को या फैमिली को तो बताएंगे ही नहीं,
लेकिन किसी साइकोथेरेपिस्ट से मेडिकल हेल्प लेने में भी कतराएंगे। जोसेफ हार्पर एक थेरेपिस्ट हैं। वॉशिंगटन पोस्ट में अपने आर्टिकल में बताते हैं कि उन्होंने औरतों को अपने बेटे या पति को उनके ऑफिस में लिटरली धक्का देकर लाते हुए देखा है। फिर उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है इन आदमियों से उनके इमोशनल इश्यूज के बारे में कुछ भी निकलवाने के लिए। अक्सर ये सारे मर्द एक ही तरह के जवाब देते हैं थेरेपिस्ट के सामने कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो हमारी बीवी हमें यूं ही ले आई खींच कर, इसलिए हम आ गए, ये कोई बढ़ा चढ़ा कर इस चीज को बता रहे हैं। लेकिन I stepped out of the bus and the smile was gone, 100%. थेरेपिस्ट को बताना भी बाद की बात है दोस्तों। असलियत में वो खुद को भी नहीं बताते कि वो डिप्रेस्ड है। समाज के सामने तो खुद को मर्द साबित करना ही है, लेकिन खुद की एक सेल्फ इमेज भी है, उसे मेंटेन करने का भी प्रेशर है। खुद को भी बताते रहना है कि मैं मर्द हूं। मैं I understand that Droop says a lot of stuff that most people don't agree with, that he's manipulating stuff, but I think we can agree with him that most men here are probably going to be depressed, that they can't be depressed because it's a useless concept. No, it's not. Most men are, they're trying to maintain this pressure of the self-image that they have in their head of being perfect, of being like Goku, right? Or being like Naruto, being like Deku, being like Tanjiro, right? Like, we're human at the end of the day, and we have to learn how to give ourselves some grace. इमेज भी है, उसे मेंटेन करने का भी प्रेशर है। खुद को भी बताते रहना है कि मैं मर्द हूं, मैं कभी डिप्रेस नहीं हो सकता। ये सारी फालतू की चीजें होती हैं। यही कारण है कि ज्यादातर मर्द डिप्रेशन के सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते। That's what I was saying earlier. मूड में ही रहते हैं, उसे इग्नोर ही करते रहते हैं। Yeah. आदमी और औरतों में वैसे डिप्रेशन के सिम्टम्स भी अलग होते हैं। For sure, the depression's gonna manifest it differently between men and women, because I know this is gonna be fucking shocking to a lot of y'all, but boys and girls are different. औरतें अक्सर उदास रहती हैं, ज्यादा रोती हैं, लेकिन आदमी समाज के सामने उदास नहीं दिख सकते, रो नहीं सकते। Yeah, Naruto is one of my favorite animes of all time. Fun fact, when I was in 6th grade, I cosplayed as Naruto for an entire week. I wore the orange jumpsuit with the blue shoulders and the fucking turtleneck for a whole week. It wasn't until Pep Gaming, which I don't know if he's in here, but he's the one, he'll know, he was there. He's like, इसलिए ऐसी सिचुएशंस में आदमियों में गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। कई लोग सब्सटेंस अब्यूज और Cringe? अल्कोहल Yes. अब्यूज की तरफ चल पड़ते हैं। भले ही शराब पीने से नर्व्स रिलैक्स हो जाएंगी, नींद आ जाएगी, लेकिन एक्चुअली में शराब डिप्रेशन को बढ़ाती है। लड़कों के लिए सॉफ्टनेस पर यह बैन करियर चॉइस पर भी पहुंच जाता है। कुछ करियर्स लड़कों के लिए इतना स्टिग्मेटाइज कर दिए जाते हैं कि सोसाइटी की बात तो दूर, लड़के खुद ही उन करियर्स में जाने की नहीं सोचें। yeah, like being a nurse. इसी बेसिस पर लड़कियों को भी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं कि हार्ड और टफ टाइप करियर लड़कियों के लिए नहीं होते, लेकिन फॉर्चुनेटली लड़कियों के लिए सिचुएशन बदल रही है। 1988 में सुरेखा यादव इंडिया की पहली फीमेल ट्रेन ड्राइवर बनी। 1993 में वसंत कुमारी एशिया की पहली बस ड्राइवर बनी। साल 2000 में ओलंपिक्स में वुमेन्स वेट लिफ्टिंग इंट्रोड्यूस किया गया और उसी साल भारत की कर्णम मलेश्वरी ने ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल जीता। 2006 में हर्षिनी कान्हेकर देश की पहली वुमेन फायर फाइटर बनी। 2018 में अवनी चतुर्वेदी फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली इंडियन वुमेन बनी। नवंबर 2021 में आर्मी ने शॉर्ट सर्विस कमीशन वाली 557 वुमेन ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन दी। ट्रेडिशनली ये जो स्टेम करियर्स थे, स्टेम यानी साइंस, Technology, engineering, and mathematics. टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और These are boy jobs. मैथमेटिक्स, इन्हें औरतों के लिए टैबू माना जाता था। लेकिन आज के दिन हमारे पास उदाहरण है कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स जैसे, जो We have to talk about these two, and also, if we're going to talk about what's happening, this may be breaking edge technology for 2025 on January 4th. We may have figured, the humans may have figured out gravity technology. And the one who figured it out was a college chick in Mississippi who's Chinese. Now, granted, as soon as she made a breakthrough in gravitic propulsion technology, she disappeared from Mississippi and popped up back in China. Coincidence? I think not. स्पेस में गई। 2021 में इंडियन मैथमेटिशियन नीना गुप्ता को अलजेब्रिक ज्योमेट्री में उनके काम के लिए रामानुजन प्राइज मिला। स्कूलों में भी अब फीमेल साइंस मैथ्स Sorry, man, but women can't drive and shit. टीचर होना अब इतना रेयर नहीं रहा है। औरतें धीरे धीरे अब उन सभी एरियाज में आ रही हैं जिन्हें पहले मेल स्पेसिफिक माना जाता था। इसके लिए औरतों को एडमायर किया जा रहा है और उन्हें इनकरेज China. भी किया जा रहा है। लेकिन मेल्स के केस में कोई पूछ तक भी नहीं रहा। कोई Yeah, because the male perspective, if you talk about the male perspective, you're a little bitch. सवाल तक नहीं पूछ Not really. रहा कि आदमी नर्सरी टीचर क्यों नहीं बन सकते। यूके के प्री स्कूल्स में केवल 2% टीचर्स मेल हैं। यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स की 2019 की रिपोर्ट केवल 3 Why did Naruto start a ramen delivery service? Because he wanted to Rasengan
his depression away. That was bad. That hurt. That hurt coming out. I love Naruto. That hurt. 3% प्री स्कूल टीचर्स मेल है। नॉर्वे जैसे देशों में ये परसेंटेज थोड़ी सी ज्यादा 10% पर है। कुछ लोगों का कहना है कि प्री स्कूल में मेल टीचर्स का होना चाइल्ड अब्यूज का रिस्क बढ़ा सकता है। ये कंसर्न पूरी तरीके से नाजायज नहीं है, लेकिन क्या इसका समाधान ये हुआ कि कुछ पोटेंशियल ऑफेंडर्स के डर से सभी मेल्स को स्टिग्मेटाइज कर दिया जाए, सभी मर्दों को एक पूरे करियर से बाहर रखा जाए? जरा सोचकर देखो, अगर आप कोई नौकरी करने जाते हो और जॉब इंटरव्यू में आपसे कहा जाता है कि अरे आप तो लड़के हो, आप एक पोटेंशियल चाइल्ड अब्यूजर हो सकते हो, इसलिए आपको ये नौकरी ही नहीं मिलेगी, आपको कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। The fuck? इसका सीधे तौर पर समाधान है थरो बैकग्राउंड चेक्स। Yeah, just to throw a background check. If a dude wants to be a teacher, it doesn't mean like he likes being around kids in a weird way. He just may like being around kids and maybe good with kids. एरन एक And be able to instill good habits and good morals to those kids. प्री स्कूल टीचर है। slate.com के इस आर्टिकल में बताते हैं कि फीमेल टीचर्स किसी बच्चे को किसी हेजिटेशन के बिना गोदी में बिठा लेते हैं, लेकिन मेल टीचर्स ऐसा करने में हिचकते हैं। एरन सजेस्ट करते हैं कि इस पर क्लियर रिटन पॉलिसीज हों, एजुकेटर्स और स्टूडेंट्स में किस तरह का टच अलाउड है और किस तरीके का नहीं, ताकि सभी के लिए सिचुएशन कंफर्टेबल बन सके। हर एक प्री स्कूल क्लासरूम में एक मेल टीचर और एक फीमेल टीचर होना भी एक अच्छा विचार है। ये केवल उन मेल्स के राइट्स का सवाल नहीं है जो प्री स्कूल टीचर बनना चाहते हैं, बल्कि ये स्टूडेंट्स की इमोशनल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत जरूरी है। Yeah. बहुत सारी साइकोलॉजिकल स्टडीज ने इसी तरफ इशारा It's maybe surprising, but there's little boys who go to school, and those little boys are going to need men to look up to see how to really become a man. And if they're just surrounded by women, they're going to have this weird animosity within themselves that they don't know what's too much, what becomes toxic, right? Like we all have the monster within us, at least boys do. We all have a monster, a demon within us, and it can come out at times, but it doesn't need to live out, right? And we need to learn when to control it and when to let it free, because there is a time for both. इशारा किया है कि अगर हमें एक जेंडर इक्विटेबल सोसाइटी बनानी है तो मेल्स को केयरिंग रोल्स में एंटर करना और एक्सेप्ट किए जाना बहुत जरूरी है। प्री स्कूल मेल टीचर्स बच्चों के लिए एक मैस्कुलिन रोल मॉडल्स का काम कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि मर्दों में भी धैर्य और सहानुभूति जैसे वर्च्यूज होने चाहिए। Yeah. इसके अलावा कुछ रिसर्चर्स का एक अलग आर्ग्यूमेंट है कि क्लासरूम में दोनों मेल और फीमेल टीचर्स उसी टीचर वाले रोल में हैं, तो बच्चे उन्हें इंटरचेंजेबली बिहेव करते हुए देखेंगे और इससे उनके दिमाग पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। यही मुद्दा जो है स्कूल से हटकर परिवार में भी देखने को मिलता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माता पिता का डिवोर्स हो रखा है और वो अपने पिता से दूर रहते हैं। कई बच्चों के फादर्स अर्निंग मेंबर वाले ट्रेडिशनल रोल में बहुत बिजी रहते हैं, बच्चों के लिए समय नहीं मिल पाता। और फिर कुछ पिता ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि उनका रोल तभी शुरू होता है जब बच्चों को डांटने की जरूरत पड़ी हो। इन सब सिचुएशंस में To me, it almost like the father almost sets the standard for the family. Like if the father sets a standard of excellence, then the kid understands what a standard of excellence is, right? मेल प्री स्कूल टीचर की इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा Your English teacher was smashing. Mine was not. It was my science teacher that made my chemistry go all out of whack. जाती। चेन्नई के अब्बू सिद्दीकी एक अच्छे खासे पैसे वाली इंजीनियरिंग की नौकरी कर रहे थे। एक दिन उनका मन किया कि छोटे बच्चों को पढ़ाना है, तो नौकरी छोड़कर उन्होंने एक मॉन्टेसरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इनरोल कर लिया। वहां 40 औरतों की क्लास में वो इकलौते आदमी थे। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जब वो नौकरी की तलाश करने लगे तो किसी भी स्कूल ने उन्हें नौकरी देने से मना कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक आदमी थे। तब जाकर उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर खुद का ही प्री स्कूल शुरू किया, ऑरेंज ट्री मॉन्टेसरी स्कूल। वो कहते हैं कि जब बच्चे किसी आदमी को नर्सरी राइम गाते हुए, कहानी सुनाते हुए, ड्राइंग बनाते हुए देखेंगे तो उन्हें एहसास होगा कि टीचिंग एक जेंडर न्यूट्रल प्रोफेशन है। And most professions are. And in fact, this isn't even about a career choice. This is once more, to me, the little kids, the little boys have somebody who is a man who is kind, empathetic, and patient, who can instill those same virtues into them. ऐसा ही प्रोफेशन है थेरेपिस्ट का। इंडिया में एक सर्वे के अनुसार सिर्फ 8.8% लड़के ही साइकियाट्रिस्ट बनना चाहते हैं। अमेरिका में साइकोलॉजी में डॉक्टरल डिग्री लेने में औरतें 3:1 से आगे हैं। मेल थेरेपिस्ट की सख्त कमी है, क्योंकि खुद का दुख साझा करने में अगर दिक्कत होती है तो दूसरों I promise you, male therapists aren't in any shortage. This is actually wrong. This is disinformation by Drew Vrothy. Because 100% of male psychiatrists are just personal trainers. You go to the gym, I promise you, you're not just physically getting your body stronger. When you have a trainer, I was a trainer for over a year, you literally are not only working through your physical issues, but your mental and spiritual ones as well. का दुख कैसे सुनेंगे,
कैसे मिटाएंगे। वही धैर्य और वही सहानुभूति यहाँ भी चाहिए। यही कहानी नर्सिंग के करियर की भी है। नर्स शब्द का जब मैं इस्तेमाल करता हूँ, आपके दिमाग में एक फीमेल की इमेज आती होगी। मेल्स को अलग से मेल नर्स कहकर बुलाना पड़ता है। 2021 में अमेरिका में सिर्फ 13.3% Y'all gotta agree, Kamala Harris is a big smash? Nah. 2019 में यूके में सिर्फ 11% नर्सिंग स्टाफ मेल था। जापान में सिर्फ 4.9%, चाइना में सिर्फ 1% और इंडिया में सिर्फ 20% नर्स मेल थे। बाकी देशों से बेहतर है, लेकिन यहाँ भी इतना बड़ा जेंडर गैप है। करियर के सॉफ्टनेस वाली जो इमेज है, ये मेल्स के लिए अकेला ऑब्स्टिकल नहीं है। एक और ऑब्स्टिकल है कि आदमी को ज्यादा कमाना चाहिए। बेरोजगार होना तो एक आदमी के लिए पाप जैसा है। कोई लड़की डेट नहीं करेगी, कोई शादी का रिश्ता नहीं आएगा। 2012 में इट्स जस्ट लंच नाम की एक डेटिंग सर्विस ने एक स्टडी की, जिसमें पाया कि 66% मेल्स ने कहा कि वो एक बेरोजगार औरत को डेट कर सकते हैं। Yes, because nearly 2/3 of guys probably are grown up with the idea that they have to be the provider, so they're going to provide whether their woman has a job or not. लेकिन यही For girls, it's not the other way around. चीज जब औरतों से पूछी गई तो सिर्फ 25% औरतें एक बेरोजगार आदमी को डेट करने के लिए ओपन थी। जब डेटिंग के लिए ही कोई राजी नहीं है तो शादी तो बहुत दूर की बात है। सोशियोलॉजिस्ट अलका बासु और स्नेहा कुमार ने NFHS डेटा को एग्जामिन किया और अनएम्प्लॉयमेंट We really are wearing the same color. I didn't realize that. और डिलेड मैरिज में एक क्लियर कट कनेक्शन देखने को मिला। शादी के लिए सिर्फ एक एम्प्लॉयड आदमी काफी नहीं है, बल्कि एक ऐसा आदमी Dark blue, a very boy color. होना चाहिए जो ज्यादा कमाता हो। जर्नल ऑफ मैरिज एंड फैमिली में कुछ साल पहले एक स्टडी पब्लिश हुई थी, जिसमें पता चला कि भले ही औरतें पढ़ी लिखी हो गई हों, कमाने लग गई हों, जेंडर बैरियर्स टूट रहे हों, लेकिन ज्यादातर औरतों को एक ऐसा हस्बैंड चाहिए जो उनसे ज्यादा कमाता हो। ये एक बहुत ही परसिस्टेंट डिमांड है। और बात केवल औरतों की डिमांड Male psychiatrists are so common that you have one in the chat, which is you, Omni, for sure. But I also think 98% of the other ones are just personal trainers in the gym. की नहीं है। बहुत से मेल्स खुद ही इस चीज से कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ की एक When you think of the adult industry, you think of women, right? No, I think of Johnny Sins, which is probably fucked up. स्टडी में 6000 मैरिड कपल से बात की गई। पता चला कि मेल्स को स्ट्रेस होने लगा। Paying on your date is about a jester, not who can provide. Yeah, and you know what's nice is Lo has a job. We split dates. There's some dates that she goes out and she pays for, and there's other things that I go out and pay for. She and I are a team. We are together through this thing called life. So there's going to be times where I got a little bit more money than she does, and I'll take care of her. And there's going to be times where she has more money than me, and she's taking care of me. That's why I tell you guys, I am so blessed. है अगर उनकी वाइफ उनसे ज्यादा कमाने लगे तो। इसीलिए फीमेल्स का प्री स्कूल टीचर Thinking of Johnny Sins in terms of like the adult industry is completely normal. Thank you. I'm a fucking weirdo, so I'm glad you guys are a bunch of weirdos that make me feel normal. और नर्सिंग के करियर में होना सही है, क्योंकि उनकी भी थोड़ी एस्पिरेशन है कि वो वर्किंग हो। लेकिन मेल्स का इतने लो पेइंग करियर्स में होना समाज को रास नहीं आता। फीमेल नर्स के लिए अनक्वेश्चनेबल रिस्पेक्ट है लोगों की, लेकिन मेल नर्स को देखकर लोग कहते हैं कि डॉक्टर नहीं बन पाया क्या। मेल प्री स्कूल टीचर को देखकर लोग कहते हैं कि ये केजी के बच्चों को क्या पढ़ा रहा है, सेकेंडरी स्कूल टीचर नहीं बन पाया क्या। जबकि ये नजरिया बहुत गलत है। सेकेंडरी स्कूल टीचर हो या केजी टीचर, डॉक्टर हो या नर्स हो, स्किल सेट्स अलग अलग हैं, चैलेंजेस अलग अलग हैं। सभी प्रोफेशंस का अपना मजा है। अब जरा सोच कर देखिए दोस्तों, जब लो पेइंग करियर चुनना ही आदमी के लिए इतना मुश्किल है, तो फिर आदमी का होम मेकर बनना, घर पर काम करना कितना मुश्किल होगा। अपनी माँ जैसा बनना चाहता हूँ। कौन सी तेरी मॉम यार? She was a housewife. पागल हो गए हो तुम? गए हो तो अंदर जाकर चड्डी उतार के You know what? Same. Lo, I hope you win the lottery because I just want to be a housewife. पर चेक कर लो। आपने बहुत सारी औरतों को देखा होगा जो हाउसवाइफ्स के तौर Dads are male psychiatrists too. Oh no, that's true. That's true. पर काम Omni, करते हैं। लेकिन you're आज तक right. आपने किसी हाउस हस्बैंड को देखा है? औरतें बच्चों को रेस करने के लिए करियर में ब्रेक ले लेती है, उनकी तारीफ होती है और होनी भी चाहिए। लेकिन अगर एक आदमी ऐसा करना चाहे, फुल टाइम डैड बनना चाहे, तो क्या उसके Does he have this option? No, he's a loser. Go back to the job and work at the factory, you idiot. पास ये ऑप्शन है? That's what most men feel. चाहे आप समाज की बात कर लो, प्राइवेट जॉब की या किसी सरकारी नौकरी की, ये जो Nope. चाइल्ड केयर लीव है, ये सिर्फ औरतों के लिए होती है। Yep. Hey, you got a new kid? Oh, congrats. You're a father? Congrats. Now get your ass back to work. सिर्फ कुछ गिनी चुनी डेवलप्ड कंट्रीज में ही आदमियों का चाइल्ड केयर लीव पर जाना एक्सेप्ट किया जाता है। वॉरेन फारेल एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है जो मेंस इश्यूज और वुमेन्स इश्यूज पर 7 किताबें लिख चुके हैं। अपनी टेडेक्स टॉक में बताते हैं कि एक शख्स एक दिन उनके पास आए और उनको शुक्रिया कहा। वॉरेन के मेंस ग्रुप से उन्हें हिम्मत मिली थी। उन्होंने काम के प्रेशर में अपनी बीवी और बच्चों को इग्नोर किया था।
डिवोर्स हो गया, दूसरी शादी हुई, उस शादी से बच्चा हुआ। अब वो चाहता था कि पहले की गलती दोबारा ना दोहराए और वो अब फुल टाइम डैड बनकर इस बच्चे के साथ रहा। मेंस ग्रुप के साथियों ने उनकी पत्नी से बात करी और वो मान गई। ये शख्स थे द बीटल्स बैंड के लेजेंड TLDR society is based towards women. In terms of relationship, marriage, and regulations, it definitely seems like it has been skewed towards women. सिंगर जॉन लेनन। इन्होंने अपने कई साल अपने बच्चे के साथ गुजारे और उनकी दूसरी पत्नी योको ओनो ने उस समय उनका बिजनेस संभाला। बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम को तो आप जानते ही होंगे। इन्होंने अपने बच्चों को एक ओपन लेटर लिखा, इसमें उन्होंने But women face more problems in society. True. I agree with you. Literally true. I agree with you. Women do face and have to, when they go out into the world, they have to think about other things that dudes never have to worry about, right? So I totally understand why laws and regulations are designed to protect women over men, but in some cases it's gone too far. Do we agree with that? ने कहा कि मेरे मन में तुम्हारे पिता के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, जो अपना समय मेरे और तुम्हारे लिए डेडिकेट करते हैं। तुम जल्द ही शब्द सुनोगे हाउस हस्बैंड, लेकिन याद रखना ये कोई गाली नहीं है, अपमानजनक नहीं है। वो मेरी ताकत है, मेरे पार्टनर है, जो मेरे हर कदम में साथ होते हैं। ये कुछ गिने चुने अच्छे उदाहरण है दोस्तों, वरना समाज में तो आजकल ये चीजें अभी भी बहुत अनकॉमन है और बहुत मुश्किल है। ना तो किसी औरत पर प्रेशर होना चाहिए कि उन्हें अपना करियर सैक्रिफाइस करना पड़े और ना ही किसी आदमी पर हाउस हस्बैंड होने का स्टिग्मा होना चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ पर यह भी है कि होम मेकर होना अपने आप में ही स्टिग्मेटाइज्ड है। वर्किंग वुमेन को ही पावरफुल वुमेन की तरह देखा जाता है। कहा जाता है कि औरतों को डिसीजन मेकिंग पावर तभी मिलेगी जब वो कमा रही हो। ये काफी गलत डिस्कोर्स है। अपने घर को संभालना कोई इंफीरियर काम कैसे हो सकता है? अपने बच्चों को बड़ा करने से नोबल और क्या हो सकता है? इसलिए It's equal work. बेसिकली बात यह है कि कौन घर को संभालेगा और कौन काम करेगा, ये किसी कपल का आपसी फैसला होना चाहिए। कुछ इसी तरीके से दोस्तों बहुत सारे मेंस इश्यूज और वुमेन्स इश्यूज आपस में जुड़े हुए हैं, ये इकट्ठे ही सॉल्व हो सकते हैं। जैसे Yep. 100% agree with this. हर किसी को वुमेन्स इश्यूज के स्ट्रगल्स में शामिल होना चाहिए, वैसे ही मेंस इश्यूज पर आवाज उठाना भी हर इंसान का फर्ज होना चाहिए, चाहे वो मर्द हो या औरत, अगर वो इक्वालिटी में यकीन रखते हैं तो। लेकिन आज के दिन हो क्या रहा है? जेंडर इक्वालिटी की लड़ाई ब्लेम गेम में बदल चुकी है। अतुल सुभाष के केस के बाद सोशल मीडिया पर ऐसी ढेर सारी पोस्ट देखने को मिली नफरत भरी। कई सारे लड़के जो कहते हैं कि सारी औरतें एक जैसी होती हैं। लोग सीरियसली ऐसे ट्वीट्स कर रहे हैं कि शादी ही मत करो, औरतों के साथ रिलेशनशिप में होना ही बकवास है, सिंगल ही खुश रहो, मैं तो बड़ा चिल गाय हूँ। दूसरी तरफ जब क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन की बात होती है तो कई सारी औरतें भी ऐसे ट्वीट्स करने लग जाती हैं कि ऑल मेन आर टू ब्लेम, कि सभी मर्दों की गलती है, सारे ही मर्द एक जैसे होते हैं, सभी पर शक किया जाना When we start talking like this, we take all nuance out of the conversation. चाहिए। इस प्रॉब्लम का समाधान एक दूसरे पर उंगली उठाना नहीं है, देश की आधी पॉपुलेशन को अपने से दूर कर देना नहीं है, बल्कि इसका सोल्यूशन इसका उल्टा ही है, साथ में मिलकर काम करना, अच्छे Yeah. इंसानों को पहचानना और ट्रस्ट और प्यार को बढ़ावा देना। That's it. Fostering trust and love. If you're going to be in a relationship with the person, you guys are a team. You guys are a unit, right? You guys are like Team 7 in Naruto. You can't do it alone. You got to work together. And it's not because of one individual person's fault. It's a team effort. You guys will win or lose, and it should be together. Don't blame the other person. That person should be your rock, your best friend, all of that. That's why I date divorced people. They're chill. Oh my gosh, I trust Virat tomorrow. Did he have a rough day today in his test match? शादी करते वक्त अगर आप दूसरे की कास्ट देखकर, रिलीजन देखकर, पैसा देखकर शादी कर रहे हो तो हैरान मत होना जब आगे जाकर इन्हीं वैल्यूज को प्रायोरिटाइज किया जाएगा। तो शादी करने का बेसिस होना चाहिए कि आप दूसरे से कितना प्यार करते हो, उन्हें कितना पसंद करते हो, उन्हें कितना ट्रस्ट करते हो और साथ में कितना फिट बैठते हो। Yep. लोगों को पसंद करते वक्त उनके अच्छे नेचर, उनकी अच्छी क्वालिटीज को देखो। ऐसा करोगे तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चांस है कि आगे जाकर आपको कोई एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपकी शादी की फाउंडेशन ही पैसे पर खड़ी हुई है तो ये कोई हैरानी की बात नहीं कि आगे जाकर पैसे के ही नाम पर आपको ठगा जाएगा, एक्सप्लॉइट किया जाएगा। और ये चीज लड़का लड़की दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ऐसे लोगों को पहचानना सीखो जिन्हें आप ट्रस्ट कर सको।
He's had a rough year, not a tough day. Yikes. जितना ज्यादा लोग इस बात को समझेंगे उतना ही कम हमें निर्भर करने की जरूरत पड़ेगी हमारे खराब लीगल जुडिशियल सिस्टम पर और खराब करप्ट सरकारी सिस्टम पर। लेकिन इन खराब सिस्टम्स का सॉल्यूशन भी साथ में ही मिलेगा क्योंकि सिस्टम की प्रॉब्लम्स कानून से कम और कानून की इंप्लीमेंटेशन से ज्यादा रिलेटेड है। अतुल सुभाष का केस हो, पुणे पोर्शे का केस हो या BMW रोड एक्सीडेंट का केस हो या आरजीकर हॉस्पिटल का केस, ये सभी केसेस इस एक खराब सिस्टम की निशानी है जिसे हमें साथ में मिलकर सुलझाना होगा। वीडियो पसंद आया तो कोर्सेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए NY50। This is honest to God. I know Drew does a lot of like left-wing political stuff. This was not a political video, in the slightest. But this was a very good video. I agree with a lot of what he is saying, and hopefully you guys are picking up what I'm putting. If you're picking up what I'm putting down, then please like the video, subscribe, and if you really like it, then share it with some of your friends. My goal here is to spread a positive message while sprinkling my 2 cents on big topics like American, Indian, and world geopolitics. And even small stuff like Twitch drama and online debacles. And if you want to see it live, come join me over on Twitch. Twitch.tv/ActuallyElrod. That's where I'm going to do all my reactions. And after the reactions, that's where we get down a game. And if you're like, hey, I have a video that I want this dude to sprinkle his 2 cents on, then come over on my Discord and let me know and join the community there. And while we're at it, I have to say thank you to everybody who has made that Discord just so poppin'. I never thought I'd have a Discord that's so flowing. It's really cool to see. Shout out to you, Bobby, Omni, Demon, all of you who have been in there who are just super active. Logie, you're the man. Logie is the one who's like modding and helping run the server, so thank you, Logie. Lastly, I challenge you. I have a challenge for you. Make somebody laugh today. We all know there's enough hate and vitriol in the world. If energy is contagious like the flu, then let's spread and get everyone contagious with our positive energy, right? Not negative energy, because there's so much of that, and if we could just be a small little change in someone's day, then you never know. Maybe that's the thing that starts shifting this world to a happier, healthier, just better place. And with all of that said and done, thank you guys, and I'll see you on the next one.